तो क्या हो जाएगा, राम इज टू लेजी, राम इज टू लेजी टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मतलब राम इतना आलसी है कि वो सुबह उठ नहीं सकता। राम इज टू लेजी टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। जैसे कि ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर। चलो दूसरा लिख ले रहे हैं, ही की जगह लिख ले रहे हैं कोई दूसरा नाम, रोहित लिख ले रहे हैं। रोहित बहुत गरीब है। दूसरा लिखो रोहित, रोहित कांट पे हिज फी, रोहित अपनी फीस जमा नहीं कर सकता। और इसमें किया कि टू टू का प्रयोग करना है, इनने क्या कि टू टू का प्रयोग करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा, रोहित, रोहित इज टू पुअर टू पे हिज फी। ठीक, रोहित इज टू पुअर टू पे हिज फी। देखो वहां भीड़ लग गई बच्चों की, ये है रोहित इज टू पुअर टू पे हिज फीस। बच्चे वो खेल सामग्री नहीं, मैं वो सब ले चुके, जो पहले पहुंच गया वो ले आता है। अभी नहीं बना, अभी अभी लागू नहीं हुआ, अभी बना नहीं। अभी तो तुम्हें, आज तो तुम फ्री हो, आज तो तुम्हें जो खेलना है खेल लो, ठीक है भैया, ये सर से बोलना है, आप मुझसे नहीं बोल सकते, ठीक है। आगे देखो, नहीं वो यू शुड टॉक टू हिम, you should talk to him, because I have been asking him, or I have been discussing him about the games and sports, about the equipments of the sports, but that he is not taking any action against it. Okay, so I think that you should consult with him. Okay, I am a common teacher like other teacher, I also want to play, I also don't have anything to play, what should I do, whom should I complain, whom should I express my grudge? Okay, चलो आगे। इफ नॉट, ठीक है क्या रहता है, देखिए मैं सुबह से कह रहा हूँ, आई हैव बीन टॉकिंग टू सर, प्रिंसिपल सर, सिंस मॉर्निंग अबाउट द distribution of the equipments of sports, ठीक है, the bats and other things, other items of the sports, but he is busy in other work. Okay, actually this type of works are very this type of works are very important, we should keep them on priority, we should keep them on priority, हमें ऐसे कामों को प्राथमिकता पर रखना चाहिए, कम से कम वो काम जो अनुशासन की श्रेणी में आते हैं। ओके, क्या रहता है कि nobody wants to be disciplined, only rare of the teacher wants to be disciplined, but discipline is very important. In discipline every student has an equal participation, every student gets chance to play, every student gets chance to play, every student gets opportunity to play. Okay, and when there is no discipline, there is no rules, there is no regulations, then the students is active, students are like a bully, they get the material to play and other student wait, that's the problem. You know one thing, the might is right, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसमें यही होता है कि जब ऐसे नियम नहीं होते, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो एंजॉय करता है, और जो सीधा होता है वो पूरा खड़ा खड़ा कोने में समय निकाल देता है अपना। तो हर जगह देखिए, ये इन पब्लिकली वी हैव विदाउट एनी रूल, every time you have a complaint without any rule, so there should be a proper rule. नहीं, there should be certain rule, when there will be rule, after the rule you will actively demand your rule, you will actively ask for your rule, actively stand for your rule. अभी तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है ना, टाइम टेबल बन जाएगा, तुम भी एक्टिवली खड़े हो जाओगे, हमारी बारी है, सिंपली, पर अभी टाइम टेबल नहीं है ना, अब बन जाएगा, कल मिल जाएगा आपको, बिकॉज आई एम हियर, इफ आई वर देयर I could make the timetable, but I am here, how can I make the timetable? I make the timetable, nobody is interested to make it, only I am interested for that, because I don't like this type of disturbance in school. I always like a discipline where the every student should have a chance to play, every student should participate in playing activities, sport activities. Some students are sitting in class, some students are roaming outside, some students are waiting for their chance but they have no chance. It's a wrong, it's wrong. The sport material is not for teachers, it is for you. Okay, but don't worry about that, we will make certain rules. Okay, चलो ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, इफ नॉट, इफ नॉट और अनलेस, इफ नॉट और अनलेस का इनका जोड़ा होता है, और हमें इफ नॉट हटा के अनलेस लगाना होता है, अनलेस लगा के इफ नॉट लगाना होता है। और ये भी आप आसानी से कर सकते हो, बड़ा आसान है, लेकिन कहने को बड़ा आसान है, लेकिन सब चीज में देखते हैं कि अगर आपकी थोड़ी सी भी अगर ग्रामर गड़बड़ होती है, अगर आपको टेंस नहीं आते, तो ये सेंटेंस आपसे गलत हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ऐसे सेंटेंस आता है, इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। ये बार बार समझाने के बाद भी गलत हो रहा है परीक्षा में, बार बार समझाने के बाद। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, अब वो बोलेंगे रीराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अनलेस। रीराइट मतलब होता है फिर से लिखो। एक दिन हमने वीडियो बनाया तो री का प्रयोग बताया था, रीराइट, रीज्वाइन मतलब फिर से करना। इसलिए पूरे वीडियो देखो तो अच्छी इंग्लिश हो जाएगी बिना वाके फ्री फट में। ठीक है, तो जाएगा इफ यू डू नॉट, तो क्या हो जाए, इसमें किसका प्रयोग करना है, अनलेस का। बाकी नहीं लिख रहा, बाकी और आता है, रीराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अनलेस। रीराइट मतलब फिर से लिखो सेंटेंस को अनलेस लगा के। तो आज जो अनलेस लगेगा तो क्या हट जाएगा, इफ और डू नॉट हट जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, डू नॉट तो हटना है ना, इफ और डू नॉट तो हटेगा। अनलेस, असल बात क्या, अनलेस बराबर ये, अनलेस बराबर ये और ये बराबर ये। तो बराबर का मतलब क्या होता है, या तो ये रहेगा ये रहेगा, दो में से एक रहेगा, है ना। जैसे कि अक्सर क्या होता है ना, शादी के पहले बोलेंगे मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा, तो शादी के बाद या तो तू रहेगी या मैं रहूंगा, दो में से एक रहेगा। अब दो तो रह ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। ऐसा होता है लड़ाई को, ऐसा होता है। तो ऐसा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकी शादी हो गई, समझ में आए, इनकी हो गई शादी। शादी के पहले जो कहते तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, अब जो कह रहे या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, दो संभव नहीं है, है ना। तो समझ लो इफ और अनलेस के विवाह हो गया और अब दोनों की टक्कर हो रही। ठीक है, डिवोर्स की बारी आ गई डिवोर्स की बारी आएगी, या तो, लेकिन डिवोर्स नहीं होगा, अलग अलग रहेंगे, या तो ये रहेगा सेंटेंस में ये रहेगा, इन दोनों की बोलाचाली बंद है। जब जे आता है सेंटेंस में, जे भग जाता है छोड़ के, जे आता है जे भग जाता है। ठीक है भाई, बे आ गए अब हम नहीं आएंगे, सेंटेंस में बोला उनको बुला रहे हो तो हम नहीं आएंगे, ऐसा होता है ना भैया, बे आ है तो हम नहीं आए, हम आएंगे तो वो नहीं आएंगे। पार्टीशन हो जाता है गांव में कई बार, दोनों को मत बुलाओ तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर काम एक आध तो बुलाना पड़ेगा। मान लो दो मामा है, एक आध मामा आ जाए, हालांकि मामा में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। चलो अब देखो उल्टा करके देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं। इफ यू, दूसरा सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 1, इफ यू डू नॉट, अनलेस का तो हो ही गया। इफ, दूसरा कर लेते हैं, इफ सी डज नॉट, इफ सी डज नॉट लर्न, if she does not learn she can't speak English, she can't speak English। इसका मतलब है अगर वह नहीं बोलती तो वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती, अगर वह नहीं सीखती तो अंग्रेजी नहीं बोल सकती। अब वो कहेगा रीराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अनलेस। अब अनलेस लगाना है, तो बताओ क्या होगा, अनलेस, अनलेस सी। अब बताओ, अगर तुमने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा सीख गए, अनलेस सी। अरे भैया ये तो हटेगा दादा, ये तो हटेगा, अनलेस सी लर्न, अनलेस सी लर्न सी। इसमें एक छोटी सी गलती और है, बताओ, एक छोटी सी गलती और है, अगर तुम समझ पा रहे तो अनलेस सी लर्न नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे देखो डज नॉट जैसी कोई बात नहीं है, और सी के साथ जब बात होगी तो क्या लगेगा,
सही है ना? अनलेस शी लर्न्स इंग्लिश, अनलेस शी लर्न्स शी कांट स्पीक इंग्लिश। यदि वो नहीं सीखती तो वो इंग्लिश नहीं बोल सकती। ठीक है, चलो और देखते हैं जरा, एक और वन मोर। ठीक है, जैसे कि अनलेस, अनलेस यू, चलो अनलेस सी, अनलेस सी प्रैक्टिस, unless she practice she can't be perfect, unless she practice she can't be perfect। इसका मतलब है यदि वह प्रैक्टिस नहीं करती तो परफेक्ट नहीं हो सकती। तो क्या हो जाएगा? इफ, इफ शी, इफ शी डज नॉट, थोड़ा सा इसमें एक चीज और गलत हो गई, एस लगाना था, है ना? इफ शी डज नॉट प्रैक्टिस शी, शी कांट, शी कांट बी परफेक्ट। आइदर, नाइदर, neither nor, lest, should, or not only, but also, not only but also, और क्या हो जाएगा? lest, should, नहीं नहीं, both and, both and, ये और ये और आता है एक both and, ये भी आया है कई बार परीक्षा में, both and। अब इसको करते हैं, तो देखो जरा, इतने वीडियो बन जाते हैं कि अपलोड करने की दिक्कत होती है, टाइम नहीं रहता। डाटा की प्रॉब्लम नहीं है, डाटा तो अनलिमिटेड हमारे पास, वाईफाई लगाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। इतने सारे उपकरण है कि वाईफाई लगाना ही पड़ता है। आइदर आर, देखो तो ऐसा सेंटेंस आ जाता है कई बार। ठीक है, जैसे कि आ गया, राम गोज टू मार्केट। देखो हम समझाने के लिए बहुत इजी सेंटेंस देते हैं, बाकी आप अपने मन से नहीं, परीक्षा में कठिन सेंटेंस आएंगे। और अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे ना, हमारी जो गाइड में से एक्सरसाइज करेंगे, तब और पता चलेगा कि किस लेवल के सेंटेंस आते हैं। राम गोज टू मार्केट, नंबर 1। दूसरा आ जाएगा, दीपक, दीपक गोज टू मार्केट। आइदर आर का जो मतलब होता है वो होता है या तो या तो या, मतलब दो में से कोई एक आदमी काम करता है ना? या तो ये करेगा या वो करता है, या तो राम बाजार जाता है या दीपक। अच्छा, कई बार एक आदमी दो काम करता है, तो उसमें भी एक, अब देखते हैं जरा, जैसे कि आइदर, तो क्या हो जाएगा? आइदर। अब परीक्षा में कैसा आएगा? रिराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ आइदर और। आइदर राम, अच्छा गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट तो सेम है, आइदर राम और दीपक। अब बताओ क्या आएगा? गोज आएगा कि गो आएगा? गोज टू, अच्छा यहाँ गोज ही आएगा। क्यों आएगा गोज? क्योंकि दो में से एक है ना, अगर यहाँ पे एंड जैसी चीजें आती तो गो आ जाता, तो आइदर राम और दीपक गोज टू मार्केट। अच्छा ऐसा भी आ जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा यू राइट पोएम, पोएम जानते हो, और दूसरा है यू राइट ऐसे, ऐसे जानते हो, निबंध या गद्यांश? नहीं नहीं, निबंध ही होता है, गद्यांश तो अलग चीज होती है, प्रोज होता है गद्यांश, प्रोज। प्रोज आता है आपको गद्यांश एक किताब में से, एक आपकी हॉर्नबिल में से आएगा और एक आपकी स्नैपशॉट में से आएगा, दोनों में से आता है एक एक। और एक कविता आती है आपकी पोइट्री, पोएम, पोएम आती है, उसको पद्यांश बोलते हैं, जिसे पद में पढ़ते हैं। तो यू राइट पोएम, यू राइट ऐसे। अब वो कहा कि उन्होंने भैया आइदर और का प्रयोग करो, तो क्या हो जाएगा? अब इसमें कौन सी चीज कॉमन है? यू कॉमन है, क्या? राइट भी कॉमन है, यू राइट दो कॉमन है, दो चीज, तो क्या हो जाएगा? आइदर, आइदर यू राइट पोएम और ऐसे। देखो इस प्रकार से या तो पोएम लिखो या फिर
अब ये करते क्यों, देखो 2 बार इतने बड़े सेंटेंस को छोटे से सेंटेंस में बदल दिया। ये डूएस डायरेक्टेड का मतलब यही होता है कि बड़े सेंटेंस को छोटे में बदल दो। इसी प्रकार नाइदर नॉर भी कर लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। जैसे हमने कहा, जैसे कि आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, LIK, आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक योर सिस्टर, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक योर सिस्टर, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हारी बहन को पसंद नहीं करता। अब इसे इकट्ठा बना लो, इसमें कौन सी चीज कॉमन है, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक यू और योर सिस्टर, ना तो मैं तुझे पसंद करता हूँ ना तेरी बहन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, योर सिस्टर, ठीक है। इसमें नाइदर का प्रयोग करेंगे, नाइदर नाइदर आई लाइक यू नॉर योर सिस्टर, नाइदर ही लाइक यू, नाइदर आई लाइक यू नॉर योर सिस्टर, ना तो मैं तुम्हें पसंद करता हूं ना ही तुम्हारी बहन को, ठीक है। चलो अगला है लेस्ट शुड, ये समझ में आ गया तुमको, है ना। लेस्ट शुड, लेस्ट शुड का मतलब होता है, लेस्ट शुड का मतलब होता है, लेस्ट शुड, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। कई बार ऐसा होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, ठीक है। धीरे बात करो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी सुन ले, ठीक है। धीरे पढ़ लो कहीं ऐसा ना हो निपट जाओ, हाँ सही बात है, ठीक है। तो क्या हो जाए, ऐसा आ जाता है कई बार, इसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं वो, जैसे स्टडी प्रॉपरली, स्टडी प्रॉपरली, लेस्ट हेल। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ भरो इसमें, तो वो दे देगा कैन, शुड और वुड, कुछ भी दे देगा, तो क्या आएगा, वुड। मतलब ये है कि जो है ना, हमेशा लेस्ट के साथ शुड ही आता है। मतलब ये ऐसे पति पत्नी है दोनों कि इसने इसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है कि 7 जन्म यही चाहिए उसको, है ना, 7 जन्म, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है, लेस्ट शुड, नाइदर आई लाइक यू नॉर योर सिस्टर। उसके बाद है स्टडी प्रॉपरली लेस्ट, तो इसमें क्या आएगा, शुड। जल्दी से कर ले रहे, जब भी बात आएगी तो शुड आएगा। चलो एक और कर ले रहे, नॉट ओनली बट आल्सो, जल्दी आ जाओ। यस यस, बट टेबल में हाथ नहीं लगाना, टेबल में धक्का नहीं लगाना, है ना। नॉट ओनली बट आल्सो, आज और पढ़ लो कल से खेलना। नॉट ओनली बट आल्सो, ना सिर्फ भी, ना सिर्फ भी। आज हमने सारे डुएस डायरेक्टेड पढ़ा दिए, आपको वीडियो बना ली डाल देंगे तो देख लेना घर पे, ठीक है, अपलोड कर देंगे जाते से। डुएस डायरेक्टेड, नॉट ओनली बट आल्सो, ना सिर्फ भी, ठीक है। जैसे हमने कहा यू सिंग अ सॉन्ग, दूसरा हो जाएगा यू डांस। अब एक आदमी की 2 बातें बता रहे हैं हम, यू सिंग अ सॉन्ग, यू डांस, ठीक है। 2 बातें बताएंगे और वो उसमें आ जाएगा रीराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली के थ्रू उसको बनाना है, तो हम क्या लिख देंगे, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट ओनली सिंग बट डांस ऑल्सो। कोई दिक्कत, यू नॉट ओनली सिंग बट डांस ऑल्सो, तुम गाते ही नहीं बल्कि नाचते भी हो। जैसे हमने कहा, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस डॉग बार्क, दूसरा दिस डॉग बाइट, मतलब यह है यह कुत्ता भौंकता और यह कुत्ता काटता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह कुत्ता भौंकता ही नहीं
काटता भी है। नहीं तुम सोचो है वो तो भौंक रहा है, भौंकन दो, कई बार भौंकते भौंकते और सीधा काट भी लेता है। अच्छा कुछ कुत्ते अच्छे रहते हैं, हाँ बिना ही भौंके झूम जाते सीधा आके। अच्छा किसी, अच्छा मैं कुत्तों से पहले मुझे बड़ा स्नेह था, लेकिन एक घर में मैं गया, कुत्ता बैठा, मैंने कहा अरे शेरू या टॉमी वट एवर कम, उसके ऊपर हाथ फेरने लगा, अरे वाह वो करो, और मैंने जाके ऐसे तेज भग, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ डॉग, मैं उतने अच्छे से उसे लाड़ कर रहा हूँ, तो वो कर ज्यादा करता तो मैं मेरा हाथ ही खा जाता वो। घर वाले कह रहे भैया, उनके घर वाले क्या बोल रहे हैं, भैया वो तो काट लेता है, 4-5 लोगों को काट चुका। मैंने कहा हटाओ जाए, इतनी देर से क्यों नहीं बता रहे, 4-5 ही काट चुका, या अगला नंबर मेरा ही है 6वां गिनती में। ऐसे ऐसे लोग पढ़ेंगे। ओके, दिस डॉग बार्क्स, दिस डॉग बाइट, तो क्या हो जाएगा, दिस डॉग नॉट ओनली बार्क्स बट बाइट आल्सो, मतलब यह कुत्ता सिर्फ भौंकता ही नहीं बल्कि काटता भी है। ठीक है, ओके। अब बहुत हैंड और करवा दे, एक और करवा दे, लास्ट बचा। क्या शोर शराबा होने लगता है ना वीडियो में, बहुत आवाज आती है। नहीं रहने दो, अंधेरा हो जाएगा। बाकी कराने को तो और भी बहुत सारे, लेकिन हम बाद में करेंगे, बोथ एंड। ठीक है, जैसे कि हमने कहा राजू गोज टू मार्केट, राजू गोज टू मार्केट। दूसरा जैसे हमने कहा कि रवि गोज टू मार्केट, रवि गोज टू मार्केट, तो क्या हो जाएगा भाई, बोथ क्या हो जाएगा, बोथ राजू एंड रवि गो टू मार्केट। अब 2 हो गए ना भाई, तो ये हो जाएगा बोथ। अच्छा एक और आया था एक परीक्षा में, ही कैन राइट विथ, एक परीक्षा में आया था ही कैन राइट विथ, अब यहाँ पे आया था हैंड, और यहाँ पे आया था बोथ और आइदर, आया था कि नहीं, ही कैन राइट विथ आइदर हैंड आएगा कि बोथ हैंड आएगा, बोथ नहीं आएगा, आइदर क्यों आएगा। अब इसे देखो समझने के लिए, अगर यहाँ पे हैंड लिखा है मतलब एक, तो एक आएगा तो क्या आएगा, आइदर, ध्यान रखना इस चीज का। और हैंड्स लिखा है अगर यहाँ पे हैंड्स तो क्या आ जाएगा, बोथ। ये इतना सा अंतर याद रखना।